أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فعل حاصل، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فعل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک نیک کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ نیک کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا اور عقیدہ ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کے تعلق سے امت تک صحیح پیغام پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا یہ بہت بڑا نیک کام ہے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ جب آپ کے فون آ رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا میں 10 دن سے سفر پر نکلا ہوا ہوں، تھوڑا سا مہاراشٹر میں الیکشن کا معاملہ تھا، میں ترجمان ہوں، اسپوک پرسن پروکتا ہوں، میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اتنا اچھا عنوان مجھے دیا تو میں سمجھا کہ نہیں، اس عنوان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میری آواز پوری بیٹھی ہوئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اللہ بلوائے گا۔ بلوانے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ بلوائے گا، کام لیتا ہے اللہ۔
اور وہ لے رہا ہے ہم سے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہم سے بھی بڑے بڑے قابل صلاحیت مند پڑے رہتے ہیں، کام نہیں ملتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر پاتے ہیں، تو آپ سے ہم سے اللہ یہ بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ آپ نے آج کا عنوان دیا ہے فتنہ شکیلیت اور حالات حاضرہ۔ فتنہ شکیلیت اور حالات حاضرہ، ابھی پچھلے جمعہ کو میں نے ہمارے اپنے شہر کی عیدگاہ میں جو میرا جمعہ کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر بھی میں نے ایک آیت سے اپنی بات شروع کیا، اور آپ ہم سب اکثر اس آیت کو سنتے رہتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تمام اہل ایمان سے، تمام ایمان والے مردوں سے، عورتوں سے، پیرنٹس سے، والدین سے، ذمہ دار سے اللہ یہ کہتا ہے کہ سنو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے پاس، ایمان والوں کے پاس، قسم اللہ کی، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں۔ دنیا والے اگر ہمارے مکانوں کو لوٹ لے، ہماری کھیتیوں کو آگ لگا دے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دے، ہماری تمام جائیداد کو چھین لے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر حالات حاضرہ کی بات کروں تو آج کے دور میں ایمان والوں پر ہر طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، ہر طرح سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ فلسطین، لبنان، غزہ اور شام میں ایک الگ طرح کا حملہ کیا جا رہا ہے کہ گولیاں ماری جا رہی ہے، میزائل برسائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان کو سلام کہ وہ کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ زمین پر، دھرتی پر اس وقت اگر سب سے مضبوط ایمان کسی کا ہے تو وہ اہل فلسطین کا ہے، اہل غزہ کا ہے۔ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، زندگی اللہ کے ہاتھ، موت اللہ کے ہاتھ، نفع اللہ کے ہاتھ، نقصان اللہ کے ہاتھ، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، مگر ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم اپنے ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں۔ ظلم کے خلاف ہم بول نہیں پاتے، ظالموں کے خلاف ہم بول نہیں پاتے، اتیاچار کے ناانصافی کے خلاف ہم اٹھ نہیں پاتے، میدان میں آ نہیں پاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، قاتل ہے، حکمران ہے، بدماش ہے، گنڈے ہیں، اگر مسلمان بھی گنڈے ہو تو ہم اماموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون دو نمبری ہے، کون بدماش ہے، کس کا حرام کا کاروبار ہے، کس کا سود کا بیاج کا کاروبار ہے، ہم ان کے خلاف بھی نہیں بول پاتے ہیں اور ان تک سچائی، حق اور بے باکی کے ساتھ اللہ رسول کا پیغام بھی نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ لیکن ایسے دور میں میرے بھائیوں، جو میں بہت اہم بات اللہ دماغ میں ڈال رہا ہے، یہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل، یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ کے اور میرے اہل ایمان کے تمام لوگوں کے یہ دشمن ہے، اور یہ دشمنی صرف ہمارے اسلام اور ایمان کو ختم کرنے کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم کو ہر اعتبار سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں انہوں نے ہم پر میزائل برسایا، گولیاں برسائی اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، یہ ایک الگ لائن سے مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ لیکن اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، صہیونیوں کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور وہ بڑے سنہرے انداز میں، بڑے حسین انداز میں امت مسلمہ اور مومن مردوں، عورتوں اور ان کی نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں ایک حد تک
कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि ईमान की हिफाजत, मैंने कहा कि सब कुछ हमारा छीन लिया जाए, लूट लिया जाए, जला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई डाकू अगर हमारे ईमान पर डाका डालने में कामयाब हो तो मैं समझता हूं कि हमारी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। और आज ईमान पर डाका डालने वाले डाकू मार्केटों में आ चुके हैं, बाजारों में आ चुके हैं। जी हाँ, आपके मोहल्लों में पहुंच चुके हैं। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे कि आपके दोस्त भी बन गए हैं, मस्जिदों में पहुंच गए हैं, आपके बाजू में नमाज पढ़ते हैं, बरसों से नमाज पढ़ते हैं, उनकी दाढ़ी सुभान अल्लाह, उनका चेहरा माशा अल्लाह, नेक मुत्तकी और परहेजगार वो चेहरों से नजर आते हैं। लेकिन अचानक जब पता चलता है और पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो डाकू था, और ये हमारी जान का डाकू नहीं था, ये हमारे माल पर डाका डालने वाला नहीं था, ये हमारी दुकान पर डाका डालने वाला नहीं था, ये हमारे इज्जत पर डाका डालने वाला नहीं था। पता चलता है ये तो ईमान पर डाका डालने के लिए मेहनत कर रहा था। अभी हमारे यहाँ आज से 1 महीना पहले आपने मेरी वीडियो देखे होगी, यहाँ कि शकील बिन हनीफ इस झूठे का मानने वाला मेरे अपने मोहल्ले में, जिस मस्जिद में आज से 10 साल पहले मैं इमामत करता था, 15 साल मैंने इमामत किया, बड़ी मस्जिद है शहर की, मस्जिद उमर, वहां पर एक नौजवान बरसों से शकील बिन हनीफ, इस खबीस, इस मरदूद, इस शैतान, इस झूठे मुद्दई नबूवत के मिशन को लेकर वो काम कर रहा था, और कई जवानों को उसने अपना गिरविदा, फैन और मुत्तबे भी बनाने में कामयाब हो गया। खैर, और फिर किसी भी तरीके से हमारे उलमा ने उसको दबोचा, उसको पकड़ा। फिर उससे 1 महीना पहले हमारे शहर की ईदगाह, जलगांव शहर की ईदगाह मस्जिद है जहां मेरे अक्सर जुमा के बयानात होते हैं, वहां पर भी एक शख्स मालेगांव से आया था और 10 दिन तक वो शकील बिन हनीफ की दावत का काम करता रहा। मैं क्यों कह रहा हूं कि फितने तो बहुत सारे हैं, और याद रखें आप कि अकीदे खत्मे नबूवत, जो भी मेरी बात को सुन रहा है, मेरे भाई, बुजुर्ग, जवान, मेरी बहनें, नौजवान, घर के बच्चे, जो भी सुन रहे हैं, सुनो मेरे यारो, अकीदे खत्मे नबूवत क्या, कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं। ये अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर इसमें थोड़ा भी शक और शुबा है तो यूं समझिए कि हमारी आखिरत, हमारी दुनिया, सब कुछ खत्म हो जाएगी। हम कुफ्र और कुफ्र की दहलीज पर पहुंच जाएंगे, हम काफिर हो जाएंगे। खत्मे नबूवत के अकीदे को आप मामूली ना समझो। और आज ये जो फितने आ रहे हैं अलग अलग अंदाज में, अच्छा, नबूवत, अकीदे खत्मे नबूवत की हिफाजत आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ इमामों की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ मुफ्तियों की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि उनकी औलाद रात में लेट आती है या दोस्ती करती है तो उनका दोस्त कौन है। हो सकता है कि दाढ़ी टोपी वाला और 5 वक्त नमाजी हो, लेकिन इसकी भी अब तो इंक्वायरी करना जरूरी हो गया कि वो कौन सा अकीदा रखने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ जब शकील बिन हनीफ का मुत्तबे पकड़ा गया तो कई माँ बाप ने कहा, मुफ्ती साहब, यार वो तो मेरे बच्चे का भी दोस्त था, मेरा बच्चा भी उसके पास उठता बैठता था। मेरे यारो, मार्केट में ये डाकू जो ईमान पर डाका डाल रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं, और ये फितना है। शकील बिन हनीफ ये एक फितना है, और क़यामत की निशानियों में से आपने ये भी सुना होगा, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, कि क़ुर्बे क़यामत फितनों की बारिश होगी। जैसे बारिश होती है ना, मौसलाधार बारिश, एक के बाद एक कतरे गिरते हैं,
ऐसे लगातार फितने आएंगे। तो उन फितनों में एक फितना ये भी है शकील बिन हनीफ, कि जो हमारे ईमान पर, हमारी नस्लों के ईमान पर डाका डालने के लिए मार्केट में आ चुका है। हालांकि ये 99% लोगों को शकील बिन हनीफ कभी भी मार्केट में दिखाई नहीं देगा। इसके मानने वाले, इसके मिशन की दावत देने वाले बिल्कुल पक्के सच्चे आपको नमाजी और मोमिन नजर आएंगे, और बाद में पता चलेगा कि ये शकील बिन हनीफ के मिशन पर काम कर रहे थे। और आज मैं आपको बता दूं कि शकील बिन हनीफ का फितना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर लगातार इसके मानने वाले पकड़े जा रहे हैं। सूरत में बेचारे जो हमारे बिहार के, बंगाल के जरी का काम करने वाले मजदूर रहते हैं, उन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले बुलाया था कि हजरत आपका एक बयान रखना है शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से, क्योंकि उसके चुंगल में मजदूर और गरीब तबके के लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले मैं वहां सूरत गया था, 1 साल पहले मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गया था। यानी पता चला कि उसके मानने वाले सैकड़ों हजारों की तादाद में बाकायदा अलग अलग फैल चुके हैं। अब ये शकील बिन हनीफ का फितना क्या है, हल्का सा शॉर्टली सुन लीजिए। नबूवत का दावा करने वाले, नबी ने फरमाया ना, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब क्लियर हो गया कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, खातमुन नबिय्यीन। लेकिन झूठे नबूवत का दावा करने वाले, झूठे मुद्दई नबूवत प्यारे नबी के दौर में भी सामने आ गए थे, साहबा के दौर में सामने आए, खुलफाए राशिदीन के दौर में सामने आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र, उनका गेम लगता गया। आशिकान रसूल ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको जहन्नम में पहुंचाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। झूठे मुद्दई नबूवत को आप अभी मार नहीं सकते हैं। जी हाँ, प्यारी हुकूमत है, शैतानों को भी मारने की इजाजत नहीं देती, खबीसों को भी मारने की इजाजत नहीं देती। आप मार नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को, अपनी नस्लों को और उम्मत मुस्लिमा को बचाने की कोशिश कर सकते हो। अब ये शकील बिन हनीफ, मुख्तसरन बिल्कुल सादे अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये शकील बिन हनीफ, नाम तो पता चल गया, इसका नाम है शकील, इसके बाप का नाम है हनीफ। ये पैदा हुआ बिहार के दरभंगा में, और अभी चल रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, 10 औरंगाबाद शहर से 10 किलोमीटर दूर एक बस्ती है पड़े गांव, ये वहां पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। अब ये खबीस, ये शैतान 2 दावे करता है। क्या कहता है? मैं मेहदी हूं। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं, हजरत मेहदी के बारे में भी हमारे नबी ने एकदम क्लियर क्लियर सब कुछ बता दिया है। अभी आऊंगा मैं। तो अब ये कहता है कि मैं मेहदी हूं, और दूसरे ये कहता है मैं मसीह हूं, यानी ये मसीह होने का भी दावा करता है और ये मेहदी होने का भी दावा करता है। अब इस पागल को कोई नहीं समझाए कि मेरे भाई, तेरा नाम तो शकील है। जी हाँ, ओके। और मेहदी के ताल्लुक से, हजरत मेहदी के ताल्लुक से प्यारे नबी, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसीलात बताई है, उन्होंने कहा है कि हजरत मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद होगा। जी हाँ, और तेरा नाम शकील। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम
یعنی ایک دم سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں یہ کیسی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس کے چنگل میں کیسے پھنس جاتے ہیں. تو عام طور سے وہی لوگ پھنستے ہیں جو جاہل ہیں. آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب، انجینئر بھی پھنس رہے ہیں، ڈاکٹر بھی پھنس رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی پھنس رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ بھی پھنس رہے ہیں. بالکل آپ پھنس رہے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے دنیا دار ہے. انہوں نے دین کی ہلکی سی بھی اتنی بھی معلومات نہیں لی کہ کوئی ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ڈاکو ہے. دین نے سیکھا. ماں باپ نے بھی لاکھوں روپے خرچ کر کے بچوں کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، لیکچرار بنا دیا، آفیسر بنا دیا، کلکٹر بنا دیا ماں باپ نے. لیکن اتنا بھی دین نہیں دیا کہ ان کے ایمان کی حفاظت وہ کر سکے، اور اگر کوئی ڈاکو ان کے پاس میں آئے تو وہ سمجھ سکے کہ یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے. تو اب سادے اندازے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمینہ، یہ شیطان کہتا ہے میں مہدی ہوں. جی ہاں، اب مہدی کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا کہ حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور یہ کتا بہار میں پیدا ہوگا. اوکے، غصہ بھی آتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسے پیارے الفاظ سے بھی نوازنا پڑتا ہے ان شیطانوں کو. حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے. اب حضرت مہدی کہ ابا حضور کا نام بھی پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے ابا کے نام پر ہوگا، یعنی حضرت مہدی کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اور اس کمینے کے باپ کا نام حنیف ہے. یہ پیدا ہوا بہار میں. اب حضرت مہدی علیہ السلام، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب سامنے آئیں گے تو بیت اللہ شریف میں کعبہ کے سامنے لوگوں کو وہ بیعت کریں گے، اہل ایمان کی قیادت کریں گے اور یہ دجال کو قتل کریں گے. اب یہ یہاں سڑ رہا ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، اور حضرت مہدی تو ظاہر ہو گئے. جی ہاں، لوگ ان کو پہچان لیں گے، پھر لوگ بیعت کریں گے. یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہے. اب یہ جو ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہاں پر سڑ رہا ہے. تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک دم سادی مثال، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کیونکہ مہدی کا نام محمد، ابا کا نام عبداللہ. مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، مہدی وہاں پر کعبۃ اللہ کے سامنے لوگوں سے لوگ ان کی بیعت کریں گے اور پھر حضرت مہدی ان کی قیادت کریں گے. بہت ساری باتیں ایک دم کلیئر ہوئی ہے. اور ایسی ہی دوسری بات یہ کیا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. جی ہاں، مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. اب اس پاگل کو بتاؤ، پاگل نہیں ہے، یہ ہوشیار ہے لیکن گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بھی کلیئر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کلیئر بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جی ہاں آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اتارے جائیں گے. جی، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر وہ اتریں گے. پوری طریقے سے معلومات دے دی گئی ہے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے. اور یہ خبیث یہاں پر پڑا ہوا ہے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں. تو مختصر یہ کہ یہ بہکی باتیں کرتے ہیں اور عجیب دجال کو عجیب طریقے سے بیان کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، حضرت مہدی آ گئے ہیں، یہ خود مہدی بن جاتا ہے، عیسیٰ بن جاتا ہے اور جوانوں کو ورغلاتے ہیں، جوانوں کو بہکاتے ہیں. تو یہ کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہے. کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ پیارے نبی نے صاف طور سے بتا دیا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا.
तो शकील बिन हनीफ भी काफिर, शकील बिन हनीफ के मुत्तबे इत्तिबा करने वाले वो भी काफिर। अच्छा, इनको बाज लोग कहते हैं कि इनसे बात करेंगे, इनको समझाएंगे। ये समझने वाले नहीं है, ये आपको समझाएंगे। हमारे यहाँ के 2-3 उलमा ने कहा था कि मुफ्ती साहब इनको समझाएंगे, तो मैंने कहा जाओ मिलो, जरा समझाओ। तो पता चला कि वो इनको समझा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जैसे अल्लाह कहता है ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहता है कि हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया, आंखों पर पर्दा डाल दिया। जी हाँ, उनके कानों पर मोहर लगा दिया। अब इनको समझ में भी नहीं आएगा। जी हाँ, इनको हक दिखाई नहीं देगा, सच्चाई दिखाई नहीं देगी। ये गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। इनका ये मिशन है। तो ऐसे वक्त में वो जो कुरान मुकद्दस की आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह कहता है कि अपने अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी, अपने घरबार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तरफ तो दौरे हाजिर में गुनाहों का अंबार लग गया है, नस्लें तबाह हो रही है। मोबाइल ने ऐसी तबाही मचाया कि किसी दीनदार का घराना भी महफूज नहीं। जी हाँ, किसी अल्लाह वाले का घराना भी महफूज नहीं, ऐसी तबाही मची है। तो अब ऐसे तबाही के दौर में अपने आप को भी और अपने घर बार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना, वो अमाल जो उनको जहन्नम में ले जाएंगे और उनकी वजह से माँ बाप को भी जहन्नम में ले जाएंगे, तो माँ बाप का भी फर्ज बन जाता है कि अपनी नस्लों की हर तरह से हिफाजत करे, हर तरह से हिफाजत करे। और ये ईमान पर डाका डालने वाले डाकू कभी कादियानी की शक्ल में आए, गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आए, और अब जो आए हैं वो अभी फिलहाल आपने एक फितना और सुना होगा, फितना गौहरी। ये भी कमीना शैतान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया। फिर वो एक और फितना है, वो भी बड़ा कमीना शैतान है, खबीस है, मिर्जा मोहम्मद मिर्जा अली इंजीनियर। ये भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। इतना जबरदस्त बात करते हैं कि भोले भाले मुसलमान उनकी बातों में आ जाते हैं। तो एक बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे जवानों को भी बता दूं कि सुनो, सहयूनी ताकतें, यहूदी ताकतें, इजरायली ताकतें आपकी जान पर भी हमला कर रही है, आपके माल पर भी हमला कर रही है, जैसे गजा और फलस्तीन में हो रहा है और हिंदुस्तान में भी हो रहा है। लेकिन सहयूनी और इजरायली ताकतों ने अपने एजेंटों को आपके दरमियान मुसलमान बनाकर भी भेजा है, दाढ़ी टोपी वालों को भी भेजा है, जो आपके ईमान पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मैं आपको खास तौर से पढ़े लिखे जवान, क्योंकि आजकल लोग है ना, उलमा से नहीं मिल रहे, मुफ्तियों से नहीं मिल रहे, इमामों से नहीं मिल रहे। अगर उनको मसला भी पूछना है तो ये पढ़े लिखे जाहिल मुफ्ती गूगल से पूछ रहे हैं। गूगल, वजू में कितने फर्ज हैं? आ गया। गूगल, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? आ गया। जी हाँ, अब बहुत सारी बातें सही अंदाज में लाई जाती है, लेकिन गूगल किसके हाथ में है? यहूदियों के हाथ में। गूगल किसके हाथ में है? सहयूनियों के हाथ में। इंटरनेट का पूरा सिस्टम किसके हाथ में है? इस्लाम, ईमान और मुसलमानों के दुश्मनों के हाथ में। ओ मेरे यारों, ओ पढ़े लिखे जवानों, हजारों की तादाद में दुश्मनों ने, सहयूनियों ने, यहूदियों ने हजारों की तादाद में, अगर कहूं तो गलत ना होगा, गूगल पर इस्लामिक वेबसाइट्स बना रखी है। इतना प्यारा नाम रहता कि आपको ऐसा लगता कि ये तो एकदम बहुत जबरदस्त साइट दिख रही। कुरान पर उनका नाम होगा, बड़ा प्यारा इस्लामी नाम होगा, बेहतरीन अच्छे अच्छे नाम होंगे। तो आपको लगेगा ये तो इस्लामिक साइट्स है। हाँ, इस्लामिक साइट्स कुछ अच्छे लोगों ने बनाकर रखी है, नो डाउट, लेकिन सहयूनियों ने, इजराइलियों ने, यहूदियों ने भी
जबरदस्त अंदाज में मुस्लिम नस्ल को तबाह करने के लिए इस्लाम के नाम से धोखा देकर बाकायदा ऐसी साइट्स बनाई है जहां पर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जाते हैं और धीरे धीरे शैतानों के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए एक तरीका ये भी है, मैं जवानों से कहूंगा कि आप अपने इलाके के जिन अहले हक उलमा को अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, अहले हक उलमा को उनके ही बयानात सुनो। वरना जैसे टीवी पर आपने देखा होगा कि टीवी पर डिबेट करने के लिए मस्त कोई शेरवानी वाला आता है, बेहतरीन, मेरे से भी अच्छी दाढ़ी होती है, बड़ी टोपी होती है, हिंदू भाइयों को भी लगता, मुसलमानों को भी लगता कि कोई बहुत बड़ा आलिम दिख रहा है, बहुत जबरदस्त मुफ्ती दिख रहा है। कोई आलिम मुफ्ती नहीं होता वो, लेकिन उसको मुफ्तियों की तरह बिठाया जाता है और फिर वो खुद भी जलील होते हैं, इस्लाम को भी रुस्वा करते हैं, इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। तो दाढ़ी टोपी पगड़ी देखकर बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं समझ लेना। ऐसे मार्केट में झूठे भी आ चुके हैं। इसलिए आसान मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप अपने इलाके के जिन अहले हक उलमा को, या अपने इलाके के नहीं, नेशनल लेवल पर कुछ अहले हक उलमा मशहूर है, इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर कुछ अहले हक उलमा मशहूर है। अगर आपको मसला पूछना है तो उनसे पूछो, उनकी साइट्स देखो, उनकी वीडियो देखो। वरना आप किसी नए आलिम को जिसको आप जानते नहीं हो और बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बड़ा अल्लामा दिख रहा है, अगर आप उसको देखकर, उसके जाहिर को देखकर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो गुमराही तक भी ले जा सकता है। इसलिए ये जो हालात हाजिरा है ना, ये जो दौरे हाजिर है, ये बहुत डेंजर, बड़ा खतरनाक चल रहा है। हर तरह से हमको और अहले ईमान को और हमारी नस्लों को तबाह करने की मेहनतें की जा रही है। इसलिए बहुत सावधान रहना। जी हाँ, दुआ भी करते रहना। कोई अगर सिर्फ 4 महीने लगा ले, 1 साल लगा ले, जमात में वक्त दे दे और वो ये समझे कि मैं तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अगर वो उलमा से दूर रहेगा, मुफ्तियों से दूर रहेगा, तो याद रखो कभी भी बहक सकता है। और एक क्लियर बात सुन लो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर जितने भी शकील बिन हनीफ के पकड़े गए हैं इत्तिबा करने वाले, या शकील बिन हनीफ को मानने वाले, अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, अक्सर हमारे जमात के साथी है, जिन्होंने जमात में तो वक्त लगाया। जी हाँ, वो जाहिल थे बेचारे, जमात में वक्त लगाया उन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन किसी बातिल अकीदा रखने वाले शकील बिन हनीफ जैसे कुत्तों के इत्तिबा करने वालों के हाथ में वो आ गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर जो हमारे साथी पकड़े जा रहे हैं उनके जमातों में वक्त भी लगे हैं। इसलिए मैं जमात के साथियों से कहूंगा कि उलमा से अपना रिश्ता मजबूत रखें, मुफ्तियान से, अहले हक उलमा से अपना रिश्ता मजबूत रखें। और आखिर में मैं कहूंगा कि दुआ भी करते रहे अल्लाह से। इसलिए आप देखिए कि जनाजे की नमाज में जो दुआ है वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा मन अहयैत। अब लोग उसको सिर्फ जनाजे की दुआ समझते हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ जनाजे की दुआ नहीं है, वो जिंदों के लिए भी है। जिंदों ने भी उस दुआ को चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी पर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए, तो ये दुआ अल्लाह से करना चाहिए। कौन सी दुआ? जो जनाजे की नमाज में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या मतलब होता है उसका? ए अल्लाह, तू हम में से जिसको भी जिंदा रख मेरे मालिक, इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और मौला हम में से तू जिसको भी मौत दे, ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। ये चलते फिरते करते रहना। जी हाँ, कब आ जाओगे डाकुओं के हाथ में और कब बहक जाओगे भरोसा नहीं। इसलिए उलमा से कनेक्शन रखना, अपने आप को ज्यादा होशियार और देर शाने मत समझना, उलमा से कांटेक्ट रखना ताकि कम से कम बचे रहो। और मैं उलमाए किराम से भी अपील करता हूं कि इस वक्त हालात हाजिरा में फितने लगातार आ रहे हैं,
उन फितनों से भी उम्मत को आगाह करना, बाखबर करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। और इस्लाह माशरा कि उम्मत के नौजवान कैसे कैसे मोबाइल की गंदगियों से तबाह हो रहे हैं, उम्मत के नौजवान कैसे गलत राहों पर जा रहे हैं, कैसे बिगाड़ पैदा हो गया है, कैसे इस्लामी और दीनी माहौल खत्म हो रहा है, कैसे निकामी खुराफात आ गई है, कैसे हराम काम आ गए हैं, और कैसे कुफ्र वाले अकीदे और कुफ्र वाले काम पर उम्मत मुस्लिमा लग चुकी है। इन तमाम से उम्मत को बचाने के लिए इस्लाही मुआशरा के उन्वान से जुमा के खिताबात करना, इजलास करना, अपने इलाकों में उलमा को बुलाना, बाहर से बड़े बड़े उलमा को बुलाना और उम्मत की फिक्र करना, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और यकीन मानो इस वक्त मुझे खुशी भी होती है कि हमारे उलमा, जवान उलमा खास तौर से बड़े पैमाने पर ऐसा काम कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने लाइव बयान रखा फितने शकील, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है आज उम्मत तक सही बातें पहुंचाने का और दीन पहुंचाने का। जी हाँ, मैं जलगांव में बैठा हूं जी। अब मैं यहां से लाइव आ गया, लोग अमेरिका में भी मुझे सुनते हैं, लंदन में सुनते हैं, पूरी दुनिया में सुनते हैं। कितना आसान अल्लाह ने दीन पहुंचाने का तरीका ये भी कर दिया, ये भी कर दिया कि मैं जुमेरात को बयान करता हूं, लाइव बयान करता हूं, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों तक बात पहुंचती है। अभी आप कोई प्रोग्राम कराएं, प्रोग्राम की मेहनत के लिए आपको 15-20 दिन, 1 महीना तैयारी करना पड़ेगी, 50,000 1 लाख खर्च आएगा। कितने लोग आएंगे प्रोग्राम में? तो पता चला कि 3,000 2,000 लोग आएंगे। और आज हम लाइव आते हैं, कोई खर्चा नहीं, और लाखों लोगों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंच जाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा काम है। मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी इनकार नहीं कर पाया और आपकी दावत पर लाइव स्क्रीन पर आ गया। और ये शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से एकदम सादे अंदाज में मैंने बात रखी, और आखिर में फिर एक बात उसको फिर दोहरा देता हूं कि एक आसान बात, शकील कहता है मैं मेहदी हूं, मेहदी के बारे में नबी ने बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, रिमाइंड कर रहा हूं कि प्यारे नबी ने हजरत मेहदी के बारे में बताया कि वो मदीना में पैदा हो गए और ये कुत्ता बिहार में पैदा हुआ। प्यारे नबी ने फरमाया हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, इस शैतान का खबीस का नाम शकील है। प्यारे नबी ने बताया हजरत मेहदी के अब्बा हुजूर का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम जी हाँ हनीफ है। हजरत मेहदी बैतुल्ला शरीफ में लोग उन्हें पहचानेंगे जी, और फिर वहां पर लोग बैत करेंगे और वह क़यादत करेंगे। ये कमीना, ये शैतान छुप कर बरसों से पड़ा है। ये पहले दरभंगा से, बिहार से निकला, इसने दिल्ली में काम किया, लेकिन दिल्ली वालों ने इसको जल्द ही पहचान लिया और वहां इसकी जबरदस्त धुलाई, कुटाई, धुनाई हुई। फिर ये वहां से भागा और अब ये कई सालों से महाराष्ट्र के पड़े गांव में औरंगाबाद के करीब छुपा हुआ है। अच्छा, तू सच्चा है ना तो बाहर आना, लोगों को दावत देना। जी हाँ, तू खुद छुपा हुआ है, तू खुद एक इलाके में अपने शैतानों के, अपने जितने तेरे मुत्तकीन हैं उसके साथ में तू वहां पर छुपा हुआ है। तो अगर तुझे बात पहुंचाना है तो अगर आप तो सही, मिल तो सही। 10 साल से निगाहें ढूंढ रही है तुझ जैसे शैतान को देखने के लिए, तो ये झूठा है। और इस झूठे के हजारों लोग मार्केट में, मैदान में, मस्जिदों में, मोहल्लों में, गलियों में आ चुके हैं। इसलिए शकील बिन हनीफ का जो अकीदा है, इसके मानने वालों का जो अकीदा है, जी हाँ, इससे लोगों को हर तरह से बाखबर करना और कराना, ये भी बहुत बड़ा दीन का काम है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला
آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور جتنے لوگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، دنیا آخرت دونوں جہاں میں اللہ سب کو بہترین جزا، بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔